السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے حوالے سے۔ موسم خبروں کے لیے میں آپ ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ آئینہ ماہ معاملات نگراں حکومت کے سپرد ہو جائیں گے۔ اتحادی حکومت نے 15 ماہ میں 4 سال کی بربادی کا ملبہ اور ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی۔ ہم نے ووٹ بینک کی بجائے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور مخالفین کی ناپاک سازشیں مٹی میں مل چکی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ وطن دشمنوں کی سازشوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری، معیشت کی بحالی کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ زراعت، صنعت، معدنیات، آئی ٹی سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں۔ پوری قوم یکسو ہے کہ قرض کی زندگی نامنظور ہے۔ نفرتیں مٹانی اور محبتیں تقسیم کرنا ہے۔ دعا ہے کہ 9 مئی جیسا سانحہ قوم کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملتان میں زیر تعمیر نیشنل 2 اسپتال کا دورہ۔ 500 بستر پر مشتمل عوامی اہمیت کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چور ڈاکو کے نعرے لگا کر وقت ضائع کیا۔ قومی اہمیت کے اس منصوبے کو صرف اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ کہیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو کریڈٹ نہ مل جائے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ ملک کو معاشی استحکام کی طرف گامزن کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قبول کی۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ رشوت، سفارش اور اقربا پروری سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ حکومت نے بڑے صنعتکاروں میں $3 ارب بانٹے۔ یہ رقم تعلیم پر خرچ ہوتی تو آج آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا۔ شبانہ روز محنت سے قرضہ لینے والی نہیں، دینے والی قوم بنیں گے۔ وسائل کی کمی کے باوجود نوجوانوں میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں۔ دوبارہ موقع ملا تو 50 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملتان میں یوتھ لون اسکیم کے تحت چیک اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط موصول۔ بقیہ رقم 2 جائزوں کے بعد نومبر اور فروری میں ملے گی۔ رواں ہفتے کے اختتام پر زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب کے قریب ہوں گے۔ تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کر رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے عمل کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار۔ اتحادی حکومت نے قومی اثاثوں کو نیلام کرنے کے بجائے استعمال کیا۔ ہر چیز بیچ دو گزشتہ حکومت کی پالیسی تھی۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے اثاثوں کو نیلام کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ہم نے قومی اداروں کی بحالی کا منصوبہ شروع کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے رواں سال $5.5 ارب کا ریکارڈ منافع کمایا۔ پی ٹی وی پشاور، ملتان اور کراچی سے علاقائی زبانوں کی 24 گھنٹے نشریات شروع کی ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں 12 نئے اسٹوڈیوز قائم کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں گفتگو۔ ملک کا نقصان کیا عوام نے، فوج تو ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے ملک کی عام نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، دشمنوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے خان صاحب کو خود جاگنا چاہیے اپنے گریوان میں۔ قومی نقصان پوری دنیا میں یہ بدنامی ہوئی ہے ہماری، اور ایسے کرداروں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، بہت غلط کیا انہوں نے۔ عوام کی 9 مئی واقعات میں ملوث کرداروں کے کیفر کردار تک پہنچانے کی پرزور حمایت۔ سیاسی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی اور صحافیوں کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ ملوث عناصر کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔
بھارتی سامراج کے خلاف کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کو سلام۔ یوم شہدائے کشمیر پر تمام تر مظالم کے باوجود آزادی کی منزل حاصل کرنے کا عزم۔ 13 جولائی 1931 کو اذان دینے پر ڈوگرا فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے شہید ہونے والے 22 مسلمانوں کو خراج عقیدت۔ پاکستانی قوم کا نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ بربریت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ جواں ہے، جبر و استبداد کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد ریاست ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ قصور اور اکاڑا کے متعدد دیہات زیریاب، متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس قائم۔ مزید علاقوں سے آبادی کا انخلا جاری۔ حاجی گلبر خان گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ پی ٹی آئی کے ہم خیال ارکان، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی حمایت۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کا ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان۔ بلوچستان کے 30 اضلاع میں 27 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے براڈ بینڈ کے 21 منصوبوں پر کام جاری۔ سوئی اور سبی کے 47 دیہات کو براڈ بینڈ سروس فراہم کرنے کا منصوبہ۔ گوادر لاڑکانہ موٹر وے پر 4G سروس فراہم کی جائے گی، معاہدہ طے پا گیا۔ آپٹیکل فائبر سے گوادر کے چاوران، خزدار، جھلمکسی، کمبر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ میں تیز ترین انٹرنیٹ سروس دستیاب ہوں گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق۔ روس کے یوکرینی علاقوں پر مزید حملے۔ یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی ایٹمی حملے کے مترادف ہوگی۔ جدید جنگی طیاروں اور جوہری وار ہیڈز کی فراہمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف۔ ویمبلڈن ٹینس چیمپئن شپ فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اسپین کے کارلس الکراز اور روس کے ڈینیل میدویدیو سیمی فائنلز میں پہنچ گئے۔ اور بینکاک میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 100 میٹر دوڑ میں پاکستان کی شجر عباس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہیٹ میں مقررہ فاصلہ 10.37 سیکنڈز میں طے کر کے اپنا قومی ریکارڈ بھی بہتر بنایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ 80 ارب روپے کا پرائم منسٹرز یوتھ ڈیولپمنٹ پیکج اسلام آباد اور پشاور کے بعد اب اولیاء کی سرزمین ملتان میں ہونہار نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپس کی تقسیم۔ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت نوجوانوں میں آسان قرضہ جات کے چیکس کی تقسیم اور نشتر ہسپتال ملتان کا افتتاح۔ آپ کے لیے لیپ ٹاپس مشین ہوگی، میرے لیے مشن ہے۔ تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے 15 ماہ میں 4 سال کی بربادی کا ملبہ صاف کیا اور ووٹ بینک کے بجائے اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور مخالفین کی ناپاک سازشیں مٹی میں مل چکی ہیں۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی بحالی کا پروگرام شروع کر دیا ہے، دعا ہے کہ 9 مئی جیسا سانحہ قوم کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت نے معیشت کے راستے میں بارودی سرنگوں اور وطن دشمنوں کی سازشوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور ملک کو معاشی طور پر کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک کو معاشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے
इस अजीम मकसद के हसूल के लिए माशी बहाली का एक जामे कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। खलीजी ममालिक से बड़ी सरमायाकारी की राहें हमवार हो रही हैं। इज्तिमाई दानिश और अनथक कोशिशों से इस मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार कराएंगे। वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह 2013 में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला था, इसी तरह एक बार फिर मुल्क को कामयाबी के रास्ते पर चलाएंगे। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें, मुसलसल मेहनत की राह अपनाएं, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिसका हरावल दस्ता आपको बनना होगा। वजीर आजम ने कहा कि मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्कों चीन, सऊदी अरब और यूएई के ताउन पर उनके मशकूर हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस हुकूमत ने दरअसल एक मेयार, एक मिसाल, एक सिमत मुतय्यन की। हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने कामयाबी से वतन अजीज को दरपेश बड़े चैलेंज से निकाला और 4 साल की तबाही को साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतज़ामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। दुआ करते हैं कि 9 मई जैसा यौम स्याह कौम की जिंदगी में फिर ना आए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम मिलकर नफरतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का प्रोग्राम कोई आसान कदम नहीं, मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ गामजन करने के लिए कड़ी शराइत को कबूल किया। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये बात मुल्तान में वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम के तहत चेक और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। दोबारा मौका मिला तो 50 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के तहत हुकूमत की लैपटॉप स्कीम तहकीक में मदद देने के साथ रोजगार के असूल में मुआविन साबित हो रही है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुल्तान में भी लैपटॉप स्कीम का आगाज कर दिया गया है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 2011 में लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 10 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। मेरिट वो एसेट है जिससे कौमें बनती हैं। सफारिश, करप्शन और अकरबा परवरी वो मिल जाएं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। चंद साल पहले बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब घरानों और मुस्तहिक तलबा को तालीमी वसाइल की फराहमी के लिए पंजाब की तर्ज पर विफाक में पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड कायम किया है। अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये 1 लाख लैपटॉप नहीं, मैं इंशाल्लाह हम मिलकर 5 सालों में 50 लाख लैपटॉप हम देंगे पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। जिंदगी रही तो मेडिकल सिटी बनाऊंगा मुल्तान में इंशाल्लाह ताला। मुआविन ख़ुसूसी शज़ा फातिमा ने कहा कि कोशिश है कि नौजवान रोजगार तलाश करने की बजाय रोजगार फराहम करने वाले बने। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात में मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम किए।
वजीर आजम ने यूथ लोन प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम किए। हम छुएंगे आसमान क्योंकि हम है पाकिस्तान। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब के दौरान BS एग्रीकल्चर करने वाली तालिबा फिजा नईम को तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। वजीर आजम यूथ लोन प्रोग्राम के तहत नौजवानों में 30 अरब के कर्जे फराहम किए जा चुके हैं, जबकि मुस्तकबिल में इस स्कीम के तहत 80 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने 4 बरस ज़ाया किए। चेयरमैन PTI ने चोर डाकू के नारे लगाकर वक्त बर्बाद किया। मुल्तान में ज़ेर तामीर निश्तर 2 अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जो इलेक्शन के जरिए आने वाली हुकूमत ने अवामी अहमियत के इस मंसूबे को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किया कि कहीं इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को न मिल जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। मुल्तान में निश्तर 2 अस्पताल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुखी इंसानियत की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि बदकिस्मती से माजी की हुकूमत ने अवामी मफादात के मंसूबों को इंतकामी सियासत का निशाना बनाते हुए तातुल का शिकार रखा। ये है वो तकाबली जायजा उस हुकूमत का जिसके सरबराह दिन रात चोर डाकू की गर्दान उनकी ख़त्म नहीं होती थी। उनको वक्त मिलता तो ऐसे अजीम इदारे जो कि अवाम के लिए बनने थे, जिनकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी थी, अरबों रुपए नहीं खरबों रुपए उनके पास थे, तौफीक नहीं हुई, टांग पे टांग रख के बैठे रहे और पाकिस्तान इस तरह बर्बाद होता रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ निश्तर 2 अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मंसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि निश्तर 2 9 अरब रुपए से जायद लागत का मंसूबा है, जिस पर अब तक 89% फंड्स लगाए जा चुके हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के फेज 1 में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का काम 80% मुकम्मल कर लिया गया है। रवां साल 30 सितंबर तक न्यूरो, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, गायनी और रेडियोलॉजी के शोबे फाल कर दिए जाएंगे। 456 कनाल पर मुहित निश्तर 2 अस्पताल के दूसरे फेज में डॉक्टर्स और नर्सिंग हॉस्टल, जबकि तीसरे फेज में मेडिकल कॉलेज तामीर किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और जारी काम का जायजा लिया। इलाज मौलजी की जदीद तरीन सहूलतों से लैस निश्तर 2 अस्पताल से जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने में इस्लामी तरक्याती बैंक की मुआवनत ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान का एक अहम शराकतदार है, जिसने हर मुश्किल वक्त में मदद की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासर को पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हाल ही में खुसूसी सहूलत काउंसिल के क़याम के बारे में भी आगाह किया। IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल हो गई है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है, इस अमल को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। तफसील बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में $1.2 अरब मुंतकिल हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि $1.8 अरब की बकिया रकम 2 जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिल जाएगी। जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी। करीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि गुज़श्ता 4 दिनों में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $4.2 अरब का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारी हुकूमत की माशी टीम ने इस मुश्किल सफ़र में भरपूर साथ दिया है और मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामज़न कर दिया है। पाकिस्तान तेज़ी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे
तरक्की के गामजन हो चुका है और इंशाअल्लाह हम सब की एफर्ट होनी चाहिए कि ये गेंस को हम कंसोलिडेट करें और हम अपने आप को इंशाअल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाएं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि हम सबको बहैसियत कौम तरक्की के इस सफ़र को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क के इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में $3 अरब की स्टैंड बाई अरेंजमेंट की मंजूरी के मुआशी हलकों ने खुशाइन करार दिया है। तफसील बताएंगी नौरीन आसिफ। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी को हर सतह पर सराहा जा रहा है। मुआशी माहिरीन ने इस मुआहदे पर मौजूदा हुकूमत खुसूसन वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों को सराहा है, जिन्होंने जाती दिलचस्पी लेकर इस मुआहदे को अमली जामा पहनाया। ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है और जैसा कि हम सब जानते हैं और पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका कि ये बेसिकली तमाम वो फंडिंग जो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए या मिल सकती है उसको अनलॉक करेगी। बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा जो है इसको अप्रिशिएट किया है इन हालात को, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। ये पाकिस्तान का सख्त तरीन माहिदा था जो IMF के साथ हुआ है। अब देख रहे हैं कि महंगाई के अंदर हमारी शरह कम होनी शुरू हो गई है, डॉलर आपने देखा है कि स्टेबल होना शुरू हो गया है, हमारे रिजर्व्स जो थे वो बढ़ गया। इससे बेहतरी होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे तो इंपोर्ट्स वगैरह पे आसानी हो जाएगी। इसके साथ जो है वो बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगी। IMF के साथ कामयाब मुआहदा मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल कर बेहतरी की जानिब गामजन करने की संजीदा कोशिश है, जिससे इक्तिसादी तरक्की के हसूल में भी मदद मिलेगी। मुश्किल फैसले वक्त की जरूरत सही, लेकिन मौजूदा हुकूमत के मुसम्मम इरादे मुल्क को मुआशे को देने सारी की जानिब गामजन करने में मुआविन साबित होंगे। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आलमी बैंक पंजाब में खानदानी मनसूबाबंदी प्रोग्राम के लिए $10 करोड़ इमदाद देगा। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन ने एक बयान में कहा है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद 2030 तक पंजाब में तौलीदी सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों को 60% की सतह पर पहुँचाना है। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के शर्मनाक वाक़े की मज़म्मत की। तफसील बताएंगी आयशा फयाज। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 2 माह से जायद का अरसा गुजर गया। 2 माह में शायद ही कोई ऐसा लम्हा गुजरा हो जब अवाम का दिल ना दुखा हो और इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत ना की गई हो।
सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफियों के वफ्द ने भी लाहौर जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के सानहे पर इंतहाई दुख का इजहार किया। जिन्ना हाउस का विजिट किया है और दिल को बड़ी तकलीफ हुई है ये देखकर कि यहाँ पे कायद का जब पियानो देखा, जब कायद की वो तस्वीरें देखी और जिस बेदर्दी के साथ इस तरह उन्होंने इसको किया है कि जैसे ये पाकिस्तानी है ही नहीं। शुरा ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल माफी जुर्म नहीं है। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। 9 मई को इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन का किरदार अदा किया है ये कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। हम सब की तरफ से भरपूर इसकी मजम्मत है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो जो भी सहूलतकार हैं और जो मुजरम हैं उनको कटहरे में लाने में भरपूर किरदार अदा करें। जिन्ना हाउस को जलाया गया, मुजस्मों को जलाया गया, MM आलम साहब के जहाज़ को जो कि हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, कर्नल शेर खान जो हमारे फ़ख्र हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ये इस धरती बहुत कम ऐसे लोगों को पैदा करती है। वफ्द ने मुतालबा किया कि कायद के घर की तबाही फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और अदालतों को जल्द से जल्द कार्रवाई करके सख्त सजा देनी चाहिए। आयशा फयाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान की आवाम ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की पुरजोर हिमायत की है। अवाम का मौक़िफ़ है कि फ़ौज सरहदों की निगहबान है, इसके खिलाफ ना बात हो सकती है ना करनी चाहिए। तफसील इस रिपोर्ट में। PGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि एक सियासी जमात की तरफ से 9 मई के वाक़यात के बारे में झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मखसूस सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया कि ये इदारों का किया धरा है। DGISPR ने वाज़ेह किया है कि ये एक सियासी जमात का सोचा समझा मंसूबा था और इस बारे में अवाम उन्नास की क्या राय है आइए जानते हैं। फौज जो हिफाजत करती है उसके बारे में तो कोई खिलाफ बात ना हो सकती है ना करनी चाहिए। मुल्क का नुकसान किया अवाम ने, फौज तो ऐसा नहीं कर सकती। अपने मुल्क की आम ने ईंट से ईंट बजा दी, दुश्मनों को कहने की क्या जरूरत है। कौमी नुकसान, पूरी दुनिया में ये बदनामी हुई है हमारी और ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा देनी। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। सिविलियन है ये जो जिन्होंने वहाँ इंटरफेयर किया, इन पर भी मुआसबा होना चाहिए। ये सजा के लायक है। पार्टीज वाले जो हैं इन्होंने पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है। हमारे जो अफसरों ने जो बात करी है वो बहुत अच्छी बात की। ये कुछ लोगों की साजिश की वजह से हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त मजम्मत करते हैं, पाक आर्मी के साथ हर वक्त खड़े। जिसकी भी साजिश थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे मुल्क की पासबान है, उन्होंने दायर ऐसा नहीं किया। अपने तौर पर अपना इमेज तो कोई खराब नहीं करता। जो भी DGISPR ने कहा वो सब सही कह रहे हैं। अवाम के साथ जो गद्दारी और नाजायजी किया है उनको सजा होनी चाहिए। जो भी मुलव्विस हैं उनको अवाम के सामने लाएं। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। फैकल्टी मेंबर्स को 9 और 10 मई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई और इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करवाया गया। इस मौके पर शुरा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि यहाँ पर आने का मकसद इजहार यकजहती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कबायली अज़ला के नौजवानों को आला तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम के ऐलान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके के बासलाहियत नौजवानों को बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम के मौक़े मुयस्सर आएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने IMF मुआहदे की मंजूरी और माशी बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस खान लगारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अवैस लगारी ने माशी मुश्किलात के बावजूद बजट में अवामी फलाही मनसूबों को तरजीह देने पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि निसाब किसी भी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आईन पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग को कौमी निसाब में शामिल करके अगली नस्लों के लिए हुकूक और जिम्मेदारियों को जानने की बुनियाद रखती है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम चाहते हैं जब हमारे बच्चे इस मुल्क को संभालेंगे तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईन पाकिस्तान के तकाज़ों से बखूबी आगाह होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सलमान सूफ़ी की क़यादत में स्ट्रेटेजिक इस्लाहात यूनिट ने वज़ारत तालीम के साथ मिलकर इन इक़दामात को अमली जामा पहनाया है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर से उनकी अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत और मरहूमा की मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुल्तान में अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मुशीर वज़ीर आज़म अहद खान चीमा, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू, मुआविन खुसूसी अता तारड़ और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान भी मौजूद थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत नौजवानों में आसान कर्जाजात के चेक्स की तकसीम और निश्तर हस्पताल मुल्तान का इफ्तिताह। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फिलिपाइन, ईरान और रवांडा के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। इस्लामाबाद में फिलिपाइन, ईरान और रवांडा के नामजद सफरा ने सदर मुमलिकत को सफारती इसनाद पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि ताउन के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। उन्होंने दो तरफा तजारती और माशी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कौमें सेहत और तालीम के अच्छे इंतजाम से तरक्की करती हैं। पाकिस्तान को महदूद वसाइल में रहते हुए इन शोबों की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में हेल्थ केयर कन्वेंशन से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसके बायस वक्त से पहले बीमारियों की तशखीस मुमकिन हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के महदूद वसाइल के पेश नज़र हमें एहतियाती तदाबीर का सहारा लेना होगा। सदर मुमलिकत ने ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए चलाई गई मुहिम को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि मुआशरे में उन्हें काम की जगह पर साजगार माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत ने PTV और रेडियो पाकिस्तान के असासों को नीलाम करने का मंसूबा बनाया। हमने इक़्तिदार में आकर कौमी असासों को आवाम के लिए इस्तेमाल किया। चेयरपर्सन जवेरिया ज़फ़र आहिर की सदारत में इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रवा साल PTV ने 5 अरब 50 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। इदारे की आमदन के पेश नज़र हुकूमत ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया। उन्होंने कहा कि PTV पेशावर सेंटर से इलाकाई ज़बानों की नशरियात और मुल्तान सेंटर पर सराइकी ज़बान में नशरियात को 24 घंटे शुरू किया है। PTV लाहौर के तमाम स्टूडियोज़ को अपग्रेड कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTV इस्लामाबाद सेंटर में वर्चुअल स्टूडियो कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को जलाया गया। हमने इस इमारत की बहाली और तज़ीम के मंसूबे का आगाज़ किया है। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के तमाम आर्काइव को डिजिटलाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़नकारों और सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी आगाज़ किया जा रहा है। वफाकी बजट में पहली बार फिल्म फाइनेंस फंड और फ़नकारों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सुहेल अली खान ने ब्रीफिंग में बताया कि रेडियो पाकिस्तान के लिए तारीखी पैकेज मंजूर किया है। इस साल माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वाफिर फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। इजलास को रेडियो पाकिस्तान में पेंशन, तनख्वाहों की अदायगी, बिजनेस प्लान, पाकिस्तान टेलीविजन के असासों और सेंटर्स के वर्किंग तरीक़ाकार पर भी ब्रीफिंग दी गई। कायमा कमेटी ने प्रोटेक्शन जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स तरमीमी बिल 2023 पर भी गौर किया। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल असरकियानी ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न हो चुकी है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत स्टेट बैंक को IMF से पहली किस्त मौसूल हो गई है। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की बकिया रकम 2 जायज़ों के बाद नवंबर और फरवरी में मिलेगी। बिलाल असरकियानी ने कहा कि गुज़िश्ता सऊदी अरब, UAE और IMF से 1 हफ्ते के दौरान की मुद्दत में पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की मुआवनत मौसूल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में आलमी बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक समेत कसीरुल जहती शराकतदारों से मजीद फंड्स मिलने की तवक्को है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स 45,266 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपना सरमाया भरपूर अंदाज में लगा रही हैं, जिससे स्टॉक मार्केट के हुजम में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज दिन के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स 45,971 की बुलंद सतह पर जा पहुंचा और इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ताहम मार्केट के अख्ताम पर सरमायाकारों की प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स में 247 पॉइंट्स की कमी हुई। सरमायाकार आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी देख रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम है माशी तौर पे और आने वाले वक्त में उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में हमारी माशत जो हम बातें कर रहे हैं 14-15 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स की स्टेट बैंक के और टोटल पाकिस्तान के ज़खायर, हम इन तमाम इक़दामात से जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किए हुए हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, हम जरूर हासिल करेंगे। दूसरी जानिब डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। आज भी इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 2 पैसे की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 278 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 281 रुपए रही। डॉलर की कदर में कमी से मुल्की कर्जों के हुजम में खातिर ख्वाह कमी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं जबकि बैरूनी कर्जों की अदायगियों में भी तवाज़ुन पैदा हुआ है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। 75 सालों से बातिल के सामने डट कर खड़े होने वाले हक परस्तों को सलाम। 13 जुलाई 1931 को आज़ान देने पर डोगरा फौज की अंधाधुन फायरिंग से शहीद होने वाले 22 मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। मोदी सरकार ने 2019 में 13 जुलाई की सरकारी तातील को ख़त्म करके जाबिराना हिंदुत्व राज कायम करने की कोशिश की थी। आसिम रिजवान की रिपोर्ट। आज के दिन 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। मुजाहिरीन अब्दुल कदीर खान के खिलाफ नाजायज रियासती मुकदमे की समाअत के मौका पर इकट्ठे हुए थे। जोहर के वक्त मुजाहिरीन के अजान देने पर पुलिस ने गोली मारकर मोजिन को शहीद कर दिया। पहले मोजिन की शहादत पर दूसरे मोजिन ने जगह ले ली, उसे भी गोली मार दी गई। मुजाहिरीन को अजान से रोकने में नाकामी पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 22 मुसलमान शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी के मिजार के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान में शोहदा को दफनाने के बाद से ये मिजार शोहदा के नाम से जाना जाता है। सानहे की याद में हर साल 13 जुलाई को दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है। आज के दिन जो शोहदा ने 75 साल से अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको याद करने का दिन है। उन सब माओं को जिन्होंने अपने लखते जिगर को कुर्बान करके जम्मू कश्मीर को आज़ाद करने की कोशिश की है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। मकबूजा कश्मीर के शोहदा को सलाम। आज दिन है जदोजहद आज़ादी की खातिर 75 सालों से लड़ने वालों को याद करने का। 75 सालों से भारत उनके अज़म को कुचल ना सका, उनकी जदोजहद आज़ादी को दबा ना सका। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर आज़ाद होगा और भारत की दहशतगर्द फौज को शिकस्त होगी। पाकिस्तानी अवाम मकबूजा कश्मीर के बासियों की जदोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़ी है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय दहशतगर्द फौज को शिकस्त होगी और कश्मीर आज़ाद होगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1931 में आज के दिन अपनी जानें कुर्बान करने वालों को पाकिस्तानी अवाम भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। यौम शोहदाए कश्मीर पर इज़हार यकजहती करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इन शोहदा ने शहादत को गले लगाया, लेकिन डोगरा राज के जबर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जबर इस्तिबदाद के बावजूद कश्मीरी पुख्ता अज़्म के बायस अपने मकसद में कामयाब होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डोगरा फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वाले 22 कश्मीरियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ उन शोहदा की कुर्बानियों को याद करती है। सदर ममलिकत यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ये काबिल अफसोस बात है कि कश्मीरी आज भी भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं और 9 लाख से ज़ायद काबिज भारतीय अफवाज जम्मू कश्मीर के अवाम को यरगमाल बनाए हुए है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम शोहदाए कश्मीर इस अज़्म की तजदीद के साथ बनाया कि वह खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये दिन हर बरस 13 जुलाई को उन 22 कश्मीरी शहदा की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1931 में इस दिन डोगरा महाराजा के फौजियों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। शहीद होने वाले ये अफराद उन हज़ारों लोगों में शामिल थे जो अब्दुल कदीर नामी एक शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर इकट्ठे हुए थे, जिसने कश्मीरी अवाम को डोगरा हुक्मरानी के खिलाफ उठ खड़े होने का कहा था। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने जब अजान देना शुरू की तो महाराजा के फौजियों ने उसे गोली मारकर शहीद कर दिया।
اس کے بعد ایک اور شخص اذان پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ یوں اذان مکمل ہونے تک 22 کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ قابض انتظامیہ نے لوگوں کو 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نقشبند صاحب میں مزار شہداء کی طرف مارچ سے روکنے کے لیے سری نگر میں پابندیاں عائد کر دیں۔ انتظامیہ نے مزار شہداء کو بھی سیل کر دیا اور دکانداروں کو شہر میں اپنی دکانیں کھلی رکھنے پر مجبور کیا۔ کلگام اضلاع میں مختلف علاقوں میں کئی گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں بھی کیا۔ حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام 13 جولائی کے شہداء اور ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں مزار شہداء جانے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یوم شہدائے کشمیر کے سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد کشمیر بھر میں بھی مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتائیں گے نعیم الاسد۔ یوم شہدائے کشمیر کے موقع پہ کل جماعت حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت کنوینر محمود احمد ساگر اور دیگر مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہداء کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی تک موجودہ جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس کے اشتراک سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکا نے 13 جولائی اور دیگر کشمیری شہداء کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام 1931 سے ہی ہندوتوا کے بدترین جبر اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قیرا نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس تاریخ ساز واقعہ نے آزادی کشمیر کی وہ مضبوط بنیاد رکھی جو آج بھی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے جموں کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام مظفر آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری موت سے نہیں ڈرتے ہیں نہ وہ تھکے ہیں اور وہ بھارتی تسلط کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقریب سے دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے باغ میں یوم شہدائے کشمیر کے موقع پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1931 سے لے کر آج تک کشمیریوں نے سینے پر گولیاں کھائی مگر آزادی سے کم کسی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے IDDDS کے زیر اہتمام مظفر آباد میں دعائے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ نعیم الاسد PTV نیوز اسلام آباد۔ منی پور کے بعد بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بھی حالات کشیدہ ہو گئے۔ پرتشدد واقعات میں مزید 6 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان سے جھڑپوں میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مغربی بنگال میں پنچایت اور بلدیاتی انتخابات کے اعلان سے اب تک پرتشدد واقعات میں مجموعی طور پر 48 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 8 جولائی کو پولنگ کے روز بھی کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر تشدد، پولنگ بوتھ پر قبضے اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ ان انتخابات میں ہندو انتہا پسند جماعت BJP کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی صدارت میں سینیٹ کی کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور پر قائمہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ نے کمیٹی کو بھارت کی جانب سے غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کرنے اور آئین کی شق 370 اور 35A کی منسوخی سے متعلق بریفنگ دی۔ کمیٹی ارکان نے یوم شہدائے کشمیر کا موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے کے بعد گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ PDMA کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 21 فٹ اور تلوار پوسٹ پر 10 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سیلابی پانی سے قصور اور اوکارا کے متعدد دیہات زیر آب آ چکے ہیں جس سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ضلع قصور میں 11 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور 211 افسران اور اہلکار ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ دریائے ستلج سے منسلک آبادیوں کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو ٹیمز ہیں وہ آگے فیلڈ میں جا کے کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ابھی جو سب سے جو کریٹیکل پوائنٹ بنا وہ مستی کے گاؤں ہیں۔ کل ہم نے تقریباً وہاں سے 650 لوگوں کی جو ایویکیویشن اس میں ہوئی تھی، آج سے صبح ابھی تک تقریباً 850 جو لوگ ہیں وہاں سے ان کو نکال لیا گیا اور ابھی بھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے
कि आज रात तक हम वहाँ से जितनी वैक्यूएशन जो है ना उस गाँव से हम कंप्लीट कर लेंगे। रिलीफ कमिश्नर ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम में स्टाफ और रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर रिस्पांस टीम को हमावक्त अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और लोगों के साथ साथ जानवरों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ कैंप्स में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई है और पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है, जबकि दीगर तमाम दरियाओं, बैराजों, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह के मुजाफाती इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हुकूमत की जानिब से पानी में फंसे शहरियों को निकालने का काम जारी है। मौज़मुद्दीन, सहजरे गाँव, गंडा सिंह, कसूर। आबादी और वसाइल में मुवाज़ने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कल से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लेना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान आबादी पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी बसीरत, आबादी में इजाफे के साथ समाजी और माशी शोबों में हम आहंगी, खवातीन के हुकूक, बराबरी और इनकी माशी खुद मुख्तारी के हवाले से इजलास होंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ज़रिए एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही और इख्तितामी इजलास से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बिंदयाल खिताब करेंगे। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन डॉक्टर सबीन इमरान और खानदानी मनसूबाबंदी 2030 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर स्मोक लिजो ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी किसी चैलेंज से कम नहीं। अगर पाकिस्तान की आबादी इसी शरह से बढ़ती रही तो 2050 तक ये 40 करोड़ का हिसाब पूरा कर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कल से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम शराकतदारों को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए फोरम मुयस्सर होगा। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत नौजवानों में आसान कर्जाजात के चेक्स की तकसीम और निश्तर हस्पताल मुल्तान का इफ्तिताह। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हाजी गुलबर खान के हक में 19 अरकान ने वोट दिया। हाजी गुलबर खान को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की हिमायत हासिल है। नए कायदे-ए-वान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी ताकि इलाके की तामीर और तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि क़याम अमन हुकूमत की अवली तरजीह होगी। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक ज़िला द्यामर से है। हुकूमत ने बलूचिस्तान के दूरदराज इलाकों और गवादर लाड़काना मोटरवे पर तेज़ तरीन इंटरनेट 4G सर्विस देने का मुआहिदा किया है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 अरब रुपए के 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। तफसील बता रहे हैं मादावान। इस्लामाबाद में USF के नुमाइंदे हारिस चौधरी और यूफोन के चीफ एग्जीक्यूटिव हातिम बामोतरफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मंसूबे की तकमील से मोटरवे के मुसाफरों और सिब्बी के अतराफ के 47 गाँव की 34,000 आबादी को तेज तरीन ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया होगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच के हमरा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए फाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा कि वजारत IT यूनिवर्सल सर्विस फंड के इश्तराक से यूफोन की मदद से दोनों मंसूबे 18 माह में मुकम्मल करेगी। नंबर 1 प्रोजेक्ट जो है M8 मोटरवे पे फाइबर ऑप्टिक बिछाने का काम जारी रहेगा और इसकी कॉस्ट आएगी 4.82 बिलियन। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं समझता हूँ कि ई स्कूलिंग, ई बैंकिंग, ई एग्रीकल्चर, ई एजुकेशन तमाम चीज़ों पे फ़ायदा पहुँचेगा। तकरीब से खिताब करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर आगा हसन बलोच ने कहा कि पसमानदा इलाकों को तेज़ तरीन तरक्की की दौड़ में शामिल करना हमारा एजेंडा है। इस मनसूबों से बलूचिस्तान के जो सोशो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली आएगी। जो ये चीज़ें आ रही है सामने तो यकीनन वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों में एक मज़बूत तब्दीली रुनुमा होगी। 478 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल से गवादर, कच्छ, आवारान, खुजदार, झलमक्सी, कंबर शादात कोट और लाड़काना के माबेन मोटरवे पर मुसाफरों और अतराफ की आबादी को तेज तरीन कनेक्टिविटी मुयस्सर आएगी। अमादवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خطہ پٹھوار، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ دادو میں 45، دال بندیر میں بھی 45، فیصل آباد 40، نوکنڈی 45، جبکہ ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد میں 37، لاہور 36، کراچی میں 35، پشاور 40، جبکہ کوئٹہ میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں بینکاک میں جاری ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹ شجر عباس نے 100 میٹر دوڑ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 100 میٹر کی ہیٹ میں شجر عباس کا وقت 10.37 سیکنڈ رہا اور انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے گزشتہ سال کامن ویلتھ گیمز میں 10.38 سیکنڈ کے ساتھ قائم کیا اپنا نیشنل ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ ورلڈ انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے حمزہ الیاس اور احسن رمضان نے میچز جیت لیے ہیں۔ سعودی عرب میں ہونے والے ایونٹ میں حمزہ الیاس نے پہلے میچ میں عراق کے عمر الفہدے کو 3-0 سے شکست دی۔ حمزہ الیاس نے دوسرے میچ میں بھارت کے عارف سنجیتی کے خلاف 3-1 سے کامیابی سمیٹی۔ احسن رمضان نے مصر کے عبداللہ گمال کو 3 فریمز میں شکست سے دوچار کیا۔ عالمی نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکراز اور روس کے ڈینیل میدودیو ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے۔ لندن میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں کارلوس الکراز نے ڈنمارک کے ہوگر رون کو شکست دی۔ الکراز نے رون کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6، 6-4 اور 6-4 سے ہرایا۔ روس کے ڈینیل میدودیو نے امریکہ کے کرسٹوفر یوبینکس کو مات دے کر پہلی مرتبہ گرینڈ سلیم کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ میدودیو نے یوبینکس کے خلاف 6-4، 1-6، 4-6، 7-6 اور 6-1 سے کامیابی سمیٹی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل حیدر حسین نے کراچی میں ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ اولمپک کوالیفائر ایونٹ میں میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پی ایچ ایف اس ایونٹ کے 1-2 میچ کراچی میں کرائے۔ پی ایچ ایف سیکرٹری جنرل حیدر حسین نے کہا کہ پاکستان ہاکی کا سنہرا دور جلد واپس لوٹے گا، ہم مل کر قومی کھیل کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بیلاروس کے سفیر آندرے مٹیلٹسا نے وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان الرحمان میزاری سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ بیلاروسی سفیر نے پاکستان کو کامن ویلتھ گیمز آف انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں شرکت کی دعوت دی۔ کامن ویلتھ گیمز آف انڈیپینڈنٹ سٹیٹس 4 سے 14 اگست تک بیلاروس میں منعقد ہوں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ CIS گیمز میں پاکستان کی 16 رکنی ٹیم باکسنگ، سوئمنگ، کراٹے اور ریسلنگ میں شرکت کرے گی۔ سری لنکا کے خلاف پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ ہیمبنٹوٹا سے گول پہنچ گیا ہے۔ قومی کرکٹرز ایک روز آرام کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 جولائی سے گال میں شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے نیزہ بازی ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے قصبے بیوفورٹ ویسٹ میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی انڈر 21 ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ قومی ٹیم نے سنگل اور سیکشن دونوں گیمز میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت سندھ میں فٹ بال ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے۔ سکھر ڈویژن میں منعقدہ ٹرائلز میں کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ملک عمران شاہد کی یہ رپورٹ۔ گنگوٹی فٹ بال گراؤنڈ میں وزیر اعظم کے یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت فٹ بال ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکھر، گھٹکی اور خیرپور اضلاع کے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
इस मरहले के कामयाब खिलाड़ियों को मुल्की सतह पर अपनी सलाहियतें दिखाने के मौके मुयसर आएंगे। सखर में हमें मैन और वुमेन की टीम सेलेक्ट करनी है और हमारे पास सेलेक्टर जो बैठे हैं वो भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं सब और पाकिस्तान के लीजेंड फुटबॉलर हैं। फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बेहतरीन इकदाम है। बच्चों को तालीम और तरबियत के साथ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम में सिंध के तमाम अजला को शामिल करने के इकदाम को इंतहाई खुशाइंद करार दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इवेंट, गर्ल्स को मौका दिया गया और एक अच्छा मौका दिया गया पाकिस्तान में। हमारे जो पाकिस्तान का टैलेंट है इससे जाहिर हो रहा है और बाहर आ रहा है जो टैलेंट छुपा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों से सिंध के देही इलाकों से टैलेंट को सामने लाने के मौके मुयसर आएंगे। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।